Hello everyone, welcome to Vikas coaching classes. I'm Shrishti Roy. I have a geography optional in UPSC, and here we are going to start with a small series for you in foundational course in geography. So we should begin with basics and atmosphere. That is also a part of our physical geography. Geography has subtypes. When you will be reading further, we'll come to know about other types. And this is a part of physical geography under the topic climatology and basics and atmosphere. Geo plus graphy. Okay, as you can see on the screen, geo plus graphy. Geo मतलब होता है अर्थ. Okay, it is the description of earth. अब अर्थ के ऊपर अंदर नीचे बाहर जो कुछ भी आएगा, it is about geography. You can relate it to the geography. Even be it plants, be it human beings, be it animals, be it dust particle, anything is about geography. There are two concepts in geography, latitude and longitude. Latitude is the angular distance measured north or south of equator. Okay, ये ऐसे नहीं समझ आएगा. For example, this is your earth. Okay, this is your earth. Okay, it's slightly round, and you have equator. You have equator which is always 0 degrees. तो ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर ये सारे जो होंगे ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स. इनका डिफरेंट नेम्स होते हैं. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे हैव देयर डिफरेंट नेम्स. इन सदर्न हेमिस्फीयर दे हैव देयर डिफरेंट नेम. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे आर लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, पोल्स. ओके, इन ट्रॉपिक ऑफ Capricorn in southern hemisphere. Okay, you have this Antarctic circle and southern pole, and they run from east to west direction. Okay, longitude is the angular distance between the meridian passing through given point in meridian. For example, मतलब ये भी angular distance है. This is your earth. एक line ऐसे जाती है which is a 0 degree prime meridian. ये भी earth को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और ये दे विल बी रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इन द अपकमिंग डायग्राम यू कैन सी इट. ये नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं. एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर इमेजिनरी लाइन्स. ओके, इमेजिनरी लाइन्स. ये आपको ऐसे अर्थ पे दिखते नहीं है. इट इज फॉर आर convenience. We have these two concepts, latitude and longitude. As you can see, the equator is passing through, which is a 0 degrees. There is also a prime meridian, which is a 0 degrees. They divide the earth into eastern, western halves and northern and southern hemisphere. Weather and climate. Weather refers to short-run atmospheric condition involving heat, moisture, motion over short area of time. Right? Weather का मतलब जो आपको डे टू डे चेंजेस दिखते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सुबह धूप है, कहीं शाम को बारिश होने लगा. ओके, शाम को बहुत ठंडी हो गई. सो दिस इज द वेदर. दैट इज डे टू डे चेंजेस दैट यू सी इन योर लाइफ. ओके, डे टू डे लाइफ वो आपका वेदर है. On the other hand, climate is aggregation of atmospheric condition involving heat, moisture and their motion over a long period of time and for larger area. क्लाइमेट पूरे इंडिया का समझ लो. ये ओके, पूरे सागर का क्लाइमेट जो होगा, पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो होगा वो होता है क्लाइमेट. ओके, क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट यू गेट. मतलब आपने एक्सपेक्ट करा कि आज बारिश हो सकती है और बारिश हो गई, तो बारिश हो सकती है इज द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन एंड वेदर इज व्हाट यू गेट. बारिश हो गई, दैट इज योर वेदर. It is a climate that attract people and the weather that makes a believe. For example, you go in summer, okay, to hill stations, to any place to visit. Why do you go? एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, right? Like cold weather we prefer for hill stations like ऊटी है, जम्मू एंड कश्मीर है, खोल दिया है अभी गवर्नमेंट ने. So you go there to see the rainfall. So you have chosen the destination because of its climate, because the climate is cool. And when you will go there and when you will see the snowfall happening, उधर के वेदर का वहाँ का वेदर क्या होता है, snowfall.
तो स्नोफॉल जो आपको दिखेगा दैट इज द वेदर ऑफ दैट प्लेस. So the difference, so you can see the difference between weather and climate आप ऐसे simple words में बोल सकते हो कि ये short period of time के लिए होता है. Okay, this is for short period of time, and climate के लिए ये longer period, long होता है. It is defined by longer period of time, and ये area भी weather का short area होता है, and climate के लिए it is a larger area. Insolation is a short form of incoming solar radiation. Okay, incoming solar radiation. अब what is the source of energy for us? एक हो गया food और एक हो गई धूप. बोलते हैं ना धूप बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए. And the energy that we get from food is also prepared by plants, and it is the prerequisite condition है sunlight for the process of photosynthesis. So solar radiation is important for surviving. Okay, तो अर्थ जो है, अर्थ is never in a straight position. अर्थ आपको लगता होगा कि सीधे पोजीशन में होता है. नो, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये 23.5 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन झुकी हुई है, जिसकी वजह से जब अर्थ के रेडिएशंस पड़ते हैं, सन के रेडिएशंस जब सन के रेडिएशंस जब पड़ते हैं, तो अर्थ फॉर एग्जांपल ये है एंड सन ये है, तो सन के रेडिएशन इक्वेटर पे पूरे होंगे. ठीक है, इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ेंगे. पोल्स की तरफ ये स्लाइटली स्लैंटिंग हो जाते हैं, मतलब कम रेडिएशंस पड़ती है. तो पोल्स पे यूजुअली 6 मंथ विंटर सीजन ही होता है. ओके, 6 मंथ्स विंटर सीजन होता है, वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं होती. एंड सिंस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन का चक्का लगाता है एक साल में, दैट इज 365 डेज. इसकी वजह से वो दोनों जो सन है ना, वो दोनों टॉपिक्स में अपीयर होता है, बट डिफरेंट पोजीशंस में. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में समर सीजन चल रहा है, एट द सेम टाइम यू विल फाइंड आउट ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीजन है. इट इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ सन एंड अर्थ. एटमॉस्फेयर को अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है, आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ योर एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल, you being a student, you have books, study table, you have your bag, you have your clothes around you, that is your atmosphere, that is the atmosphere of your room. Similarly, earth का भी कोई atmosphere होगा. So atmosphere is a mixture of different gases and it envelops the earth all around. For example, this is your earth and this is the atmosphere which envelops the earth. It contains many gases like oxygen है, nitrogen है, carbon dioxide है, but at the same time आप देखोगे एयर जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, विदाउट एयर क्या वी कैन नॉट लिव. 32 किलोमीटर्स तक एयर आपको थिक एयर होती है, वहाँ पे सारी गैसेस आपको मिलेंगी. ठीक है, लेकिन 32 किलोमीटर के जैसे ही आप ऊपर जाओगे, एयर की अगर आप कंपोजिशन देखो बिल्कुल खोखली हो जाती है, थिन हो जाती है, उसमें कोई गैस नहीं होती. इसलिए इट इज़ हार्ड टू सर्वाइव, इसलिए जब माउंट एवरेस्ट की अगर कोई चढ़ाई करता है, दे टेक अलॉन्ग विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज विथ हाइट द कंपोजिशन ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीजेस. The volume of other gases is constant if you will see the composition of gases. Gases में सबसे important है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा भी अगर प्रोपोर्शन यहाँ वहाँ होता है, इट इज़ डेंजरस. ओके, बिकॉज इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. It is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation. ये ट्रांसपेरेंट है मतलब कोई भी चीज़ आर पार हो जाएगी तो वो ट्रांसपेरेंट है. तो जब सोलर रेडिएशन सन से आती है तो ये गुजरने देता है, तभी वो हमारे तक आती है सन की रेडिएशन. बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका मतलब ओपेकनेस मतलब टेरेस्ट्रियल, जहाँ पे भी आप वर्ड देखोगे इट इज़ रिलेटेड टू लैंड. तो जब भी रेडिएशन अर्थ से ऊपर हम बोलते हैं ना कि कितना गर्म है लैंड, सो दैट इज़ वेयर द रेडिएशन लैंड से निकलती हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सिंस इट इज़ ओपेक टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये उसको एब्जॉर्व कर लेता है और वही रह जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर increases, and that is why it is responsible for the greenhouse effect.
सिंस यू नो वी आर इन द लॉकडाउन पीरियड, तो ग्लोबल अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन कुछ चालू नहीं है, इसलिए सो बिकॉज वन ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फॉसिल फ्यूल, और हम तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल ही यूज़ करते हैं विच इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी सिंस लॉकडाउन के पीरियड में देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम होगा। ओके, because it increases the temperature. Now the proportion of gases changes. हाँ, gases as a component, इनका वही ना, इनका जो proportion है वो change होता है. How it changes? Okay, how it changes? It changes कि जो oxygen है ये almost negligible होगा इन द क्वांटिटी आफ्टर 120 किलोमीटर्स के ऊपर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी 90 किलोमीटर्स तक ही मिलते हैं, उसके ऊपर कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल। ये सारे वाटर वेपर एक गैस ही होती है, ठीक है। आपको वाटर कभी भी वाटर फॉर्म में नहीं मिलेगा, पानी जैसा नहीं, वो हमेशा वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। और वाटर वेपर का फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? एवापोरेशन को। सो इट इज़ अ वेरिएबल गैस इन द एटमोसफियर, जो वो भी कम होता है विद एल्टीट्यूड। नाउ द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में ये सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी उमस होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है, दैट इज़ 4%। और जहाँ पे ड्राई एयर होती है वहाँ पे लेस देन 1% होगा। सिंस ये एवापोरेशन के प्रोसेस से वाटर वेपर होता है। एवापोरेशन अगर आपको याद हो छोटे क्लासेस में, सनलाइट इम्पॉर्टेंट होता है एवापोरेशन के लिए। तो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोल्स पे तो सनलाइट है ही नहीं, हमने पहले ही देखा था, इंसुलेशन वहाँ पर जाती ही नहीं है, इसलिए वाटर वेपर भी नहीं है। एंड वाटर वेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। डस्ट पार्टिकल, बाय इट नेम डस्ट पार्टिकल, आप ये मत समझना, डस्ट पार्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको भी लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर में मिलेंगे। लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर वी विल सी इन डिफरेंट लेक्चर। फॉर नाउ अंडरस्टैंड डस्ट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट पार्टिकल ही है जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है एंड रेन, यू सी रेन अराउंड यू, क्योंकि डस्ट पार्टिकल एक न्यूक्लियाई का काम करता है अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं। सो नाउ यू हैव सीन कि एटमोसफियर में गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है एंड देयर रोल। Okay, so in the next lecture we will see some more concepts that are important in geography. Till that time, thank you.